बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ। बस ठीक है। अमन, जेएनयू का माहौल कैसा चल रहा है? जेएनयू में बारिश अच्छी हो गई बारिश तो पूरी दिल्ली में हुई। और माहौल अच्छा हो गया है। अभी अभी सेशन स्टार्ट होगा, नया सेशन है। एमए के स्टूडेंट्स आए हैं, अभी पीएचडी का एंट्रेंस चल रहा है। कितने बच्चे हैं पीएचडी में जेएनयू में? मतलब एग्जैक्ट नंबर आई कैन टेल, बट 60% ऑफ द स्टूडेंट आर फ्रॉम पीएचडी। 60% ऑफ पीएचडी, 40% आउट ऑफ 8,000 पोस्ट ग्रेजुएट है। post graduate and BA courses. BA Like courses and भी है। JNU offer mostly language courses like अच्छा। BA in Chinese studies, BA in Russian studies. These courses has been offered by JNU. सही है। और आपका स्पेशलाइजेशन है International इंटरनेशनल रिलेशन, स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक। हाँ, मतलब I am doing my research on Indo-Pacific, the policy of EU, यूरोपियन यूनियंस पॉलिसी ऑफ इंडो पैसिफिक। and what they are doing here, what are the motives, what compel them to come here. These things I am exploring. यार ये नाम चेंज हुआ था थोड़े समय पहले, ये एशिया पैसिफिक से इंडो पैसिफिक हो गया था, इसका क्या रीजन था? इसका इसका बेसिक रीजन ये है कि as the time changes, needs also changes and new developments has come up. Like after 1991, the economic reform that India has went through, and through that we have shown consistent growth also. And similarly, like in Southeast Asia also, these countries have shows consistent growth, and China become a powerhouse of the world. So the center of economy, which we call geoeconomics, have changes from transatlantic to trans-Pacific. So mostly Asia Pacific was a term only for economic cooperation. So all the economies of Asia and Pacific adjoining the Pacific Ocean were the part of that organization. Also, there's organization as Asia Pacific. So, but since 2015, or you can say 2010, there was a urgent need or recognition among major countries, especially in 2007. Japanese Prime Minister Shinzo Abe was recently assassinated. He gave a speech in Indian Parliament. The speech titled "Confluence of Two Seas." So where he stated that there is need of seeing these Indian Ocean and Pacific Ocean as in singular entity. So we should not be seen at a two distinct geographical identity. These are integrating identity, and they show a distinct character where we can see there is a growth engine which is going on in this region, because top 10 economies, number 2 is China, number 4 is Japan, number 5 is India. So economic growth engine is basically Indo-Pacific, and the population also, the huge population India also, and and 60 to 70% of trade is going through this region only, be it energy trade, be it material trade, all mostly from Indian Ocean and South China Sea. So where there is economics, there is politics. So everyone wants to have their say in this maritime trading lines, maritime routes. So in late 2016-70s, USA recognized this. There is Hillary Clinton came up to say this, no? Hillary Clinton in 2010, she somehow stated in foreign affairs articles also in a speech, but mostly after Trump came to the power, and he clearly stated, and he also recognized the importance of this Indo-Pacific region. So in Indo-Pacific and Asia-Pacific, there is difference between them. So Asia-Pacific is mostly an economic connotation. So Indo-Pacific consists of geopolitical and geoeconomic connotation. So whoever able to control this region will have a say in next world order. That is, we can say rapidly changing. Now USA, the superpower we used to say, they did not wield that much of power, which we usually in 1990s until 2005. So after that, I think the power structure is changing because of the economic growth that this region has shown. So there is recognition, and there is also need to restructure the global order that has been operating since Second World War. So there was some news also that these panelists were talking about we have institutions which are from the Second World War era, and now there is a time to change it.
just like United Nations Security Council, there are 5 permanent members, and India wants a seat in it. So similarly, there are other organizations also which needs a change. So basically, changing the name, making it Indo-Pacific from Asia-Pacific, does it make any kind of real change on ground, or it's just just for the name, just because India was saying back then that India has been given too much importance by the world when this name was changed from Asia-Pacific to Indo-Pacific. So does it make any real change on ground? Look, if we see, there are two distinct changes. There is geographical boundaries that has been redefined through Indo-Pacific. So Asia-Pacific generally, we can say it geographically limited towards till Indonesia. So India and the eastern part of Africa was not included in Asia-Pacific. So yes, there is a extension of boundaries, geographical boundaries also extended to east coast of Africa also. So Africa become also part of this. Middle East also part of this. So it's not about that we are changing name. We are also changing the geographical limitation of this region also. Secondary, why we are changing? I already stated there is a need for this. There is a need to recognize what has been a change in not only a shift in economics but also power structure. Because now India till the end of this century, last century, was generally a power is a rule acceptor. Generally, we didn't have much say in making the rules and making major decisions because we didn't get much high seat at high tables. We generally are on the receiving end. So as the economic grow and we become the biggest market of the world right now due to our demography and our growth that we have shown. So all the major developed countries have realized that there is a need to recognize what India have achieved in last 75 years. Okay. So and in that scenario we are right now. We can see the present G20, the summit that India hosted, yesterday. It was given to India, or it's just the rotation way that the chances come and every country one after the other gets the hosting? How does it happen? Look, G20 is a multilateral organization. So G20 is very unique in some form. Like if we see all the multilateral institutions like UN. UN has its headquarters in New York City, like IMF in Washington DC, or we can say WTO has its Geneva headquarters. So G20 is a unique institution. We can go in the street, but basically it's an institution which does not have any. It's a summit forum which does not have any institution or any headquarters per se anywhere. So what they have decided that we will not be waste our time in bureaucracy and staffs, all that. So they do that. All the countries will get the leadership role on rotationary basis. So those one who got this opportunity to lead this summit level organization, so they will provide the hosting, all the institution works that they will. तो basically इसमें यह है कि G20 का कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसे फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है. सो वो कंट्री जो होस्ट करेगी वही लीडरशिप का रोल करेगी और वही ये सारी चीज़ों को मैनेज करेगी. लाइक इंडिया नाउ हैव अ लीडरशिप रोल विच इंडिया गॉट फ्रॉम इंडोनेशिया एंड नाउ इंडिया विल पास टू ब्राज़ील. तो इंडिया जो लीडरशिप जो प्रेजेंटली जो अपन होस्ट कर रहे हैं वो मतलब इंडिया गोट लीडरशिप रोल ऑन बेसिस ऑफ रोटेशनरी बेसिस. ये रोटेशन से ही मिलता है. रोटेशन से ही मिलता है. तो इसका ओरिजिन क्या है, मतलब कहाँ से ये शुरू हुआ G20 और ज़रूरत क्या थी? तो G20 बेसिकली है क्या कि G20 एक ऑर्गेनाइजेशन है डेवलपिंग नेशंस की जो 1999 में स्टार्ट हुई. तो इनिशियली तो ये फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर्स के जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं उनकी मीटिंग्स होती थी. तो 1999 में ये क्यों आई है, क्योंकि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी. थाईलैंड से स्टार्ट हुई थी. यहाँ पे कुछ ये प्रॉब्लम आई थी, फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम आई थी, मेल्टडाउन हुआ था इकोनॉमीज का. तो एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन के लिए इनको लाया गया टू कोऑर्डिनेट देयर फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज. लेकिन जैसे
2008 फाइनेंशियल क्राइसिस आई, तो देन दे रियलाइज दैट दे नीड टू मीट हेड ऑफ द स्टेट. So it's not about financial monetary policy coordination. There lots need to be coordinated. तो 2008 में समिट लेवल स्टार्ट हुई थी, जिसको अपन ग्लोबल जो समिट बोलते हैं. तो इसका एक यूनिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि और ऑर्गेनाइजेशन का अपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनका एक इंस्टीट्यूशन है, उनका एक हेडक्वार्टर है. जैसे आप यूएन देखो, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में. अगर आप WTO को देखो तो जेनेवा में है. IMF का वाशिंगटन DC में. आपको G20 का कहीं हेडक्वार्टर नहीं मिलेगा. सही बात है. G20 का आपको कोई रेगुलर स्टाफ भी नहीं मिलेगा. तो G20 एक ऐसी मतलब मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ना इंस्टीट्यूशन है, ना परमानेंट स्टाफ है, ना परमानेंट कोई हेडक्वार्टर है. तो ये क्या करते हैं कि जो लीडरशिप है वो रोटेशनरी बेसिस पे मिलती है सबको. तो लास्ट ईयर इंडोनेशिया की, तो इसलिए इंडिया को मिल गई, नेक्स्ट ईयर ब्राजील को है. तो ये रोटेशनरी बेसिस पे मिलती है. तो जिसको ये लीडरशिप रोल मिलता है उसी को सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं. तो भाई ऑन रोटेशन बेसिस इंडिया गॉट दिस. और उसी में इसमें क्या होता है, अगर आप ब्यूरोक्रेटिक स्टाफ देखो तो इसमें एक शेरपा होता है. शेरपा होता है हर कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव, उसको शेरपा बोला जाता है. जैसे अपने श्री अमिताभ कांत है, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू आउट द ईयर, नेगोशिएट करते हैं वो सारी चीज़ों. हाँ, सारी चीज़ें डिस्कशन होती है. जैसे इंडिया में आपने पता है कि 200 मीटिंग्स हुई हैं. अलग अलग एम्पावर्ड ग्रुप्स में है, G20, U20, T20, ये सब अलग अलग. जैसे मेयर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, ये सब अलग अलग कॉन्फ्रेंस होती है. तो उनको सब कोऑर्डिनेट कौन करता है? उन्हें शेरपा करते हैं. और इसके बाद फाइनल होता है, ये अपना हेड ऑफ द स्टेट मिलते हैं. हेड ऑफ कल्मिनेशन पॉइंट है आखिरी. और यहाँ पे सारे लास्ट में जितनी भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो जॉइंट स्टेटमेंट के थ्रू डिक्लेयर हो जाते हैं. लेकिन इस इंस्टीट्यूशन इस ऑर्गेनाइजेशन का ये भी पार्ट है कि इसमें जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो ऐसे नहीं है कि वो मैंडेटरी है, मतलब वो आपके लाइबल नहीं है, मतलब आप ना मानो. लेकिन ये मोरल फोर्स है, मतलब एक मोरल फोर्स है कि भाई हम ये कर लेंगे. जैसे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई तो अराउंड $4 ट्रिलियन का इंजेक्ट करा गया इकोनॉमीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड. इन्होंने क्या कि रिसेशन इज कमिंग, सो गवर्नमेंट हैव्स टू इंजेक्ट द मनी. वो एक अच्छा स्टेप था. 2017 में मीथेन पे इन्होंने एग्रीमेंट किया. और ये सब लिखा हुआ था जो आप बोल रहे हो, ये G20 के डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, लेकिन वो पॉलिटिकल विल के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो. जैसे कि 2021 में आई थिंक कोल पावर प्लांट्स पे कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे, लेकिन इंडियनों ने उसको मतलब इन टोटो फॉलो नहीं किया, बिकॉज वी नीड एनर्जी सिक्योरिटी एट दिस पॉइंट. यस, तो जिनको फॉलो करना है वो कंट्रीज फॉलो कर लो, बट देयर आर एग्रीमेंट्स कि वी हैव इंटेंशन टू डू दिस. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहाँ पे बेसिकली जो इम्पोर्टेंट नेशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के, वो यहाँ पे बहुत सी पॉलिसीज पे एग्रीमेंट शो करते हैं, एंड देन दे विल कल्मिनेट इन सम फॉर्म ऑफ पॉलिसीज एट ग्लोबल और डोमेस्टिक लेवल. तो इसमें एजेंडा क्या है इस G20 का, और व्हाट यूनिकनेस इंडिया इज ब्रिंगिंग? यूनिकनेस तो मतलब कि इंडिया ने इसमें डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस किया इस पॉलिसीज में, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि हेड ऑफ द स्टेट या ऑल द ब्यूरोक्रेट्स विल मीट एंड डिसाइड. यहाँ पे इंडिया में अपन ने लोगों से भी इनपुट्स मांगे, लाइक 200 मिलियन पीपल पार्टिसिपेटेड. बट आई हैव सीन लॉट्स ऑफ प्ले कार्ड्स, लॉट्स ऑफ आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन कैंप्स इन जयपुर, इन दिल्ली ऑल्सो. वहाँ पे लोगों से सजेशन मांगा गया था ड्यूरिंग. आप क्या सोचते हो G20 पर? लोगों से सजेशन मांगे गए थे, और मतलब पीपल लेड सॉल्यूशन भी करे गए हैं. तो इंडिया ने इसको ये नहीं बनाया कि हम ये मतलब एक ना एलिट स्ट्रक्चर है, एलिट ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग मतलब जो ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिकल हेड वो लोग करेंगे. इनको लोगों तक पहुंचा है कि यू आर द वन हु कैन फॉर्मुलेट द पॉलिसी, यू आर द वन हु कैन गिव यू आइडिया. तो यूनिकनेस इंडिया ने इसको डेमोक्रेटाइज कर दिया इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो और भी कंट्रीज के लिए, क्योंकि जनरली बोला जाता है ना डेमोक्रेटिक नेशंस का ये ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि इसमें चाइना भी है, रशिया भी है, बोथ आर पार्ट ऑफ इट. तो ये इससे और कंट्रीज पे भी एक तरह का प्रेशर आ गया कि नाउ जब भी वो होस्ट करें तो पीपल शुड पार्टिसिपेट इन दिस. अच्छा, तो ये यूनिकनेस है. प्लस इंडिया ने जो आपको पता है अलग अलग सिटीज़ में, अराउंड 65 सिटीज़ में ये समिट्स ऑर्गेनाइज कराई है, तो अपना कल्चर शो करा है. ऐसा नहीं है कि एक सिटीज़ में या 2 सिटीज़ में हुआ है. तो और इसका एजेंडा डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डोमेन्स होते हैं. जैसे इसका एजेंडा आपको पता है इकोनॉमिकली तो होता ही है. इकोनॉमी में क्या था कि एक तो क्रिप्टो करेंसी को कैसे आप मतलब या तो इसको बैन करो या इसको रेगुलेट करो. जो पॉलिसी पेपर आया है कि इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, जिस पे भी एग्रीमेंट हुआ है.
एक इसमें ये हुआ है कि जो डेट जो है लोअर इनकम कंट्रीज़ के, उनको अपन को रिफर्बिश करना पड़ेगा, उनको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपन को, उसमें भी एग्रीमेंट हुआ है। सेकंड आता है क्लाइमेट चेंज में कि इसमें क्या एग्रीमेंट्स करेंगे। क्लाइमेट चेंज में कोल बेस्ड पावर पे भी इस बार वापस एग्रीमेंट हुआ है कि वी विल नॉट इंस्टॉल न्यू पावर प्लांट्स, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। और इसमें जेंडर का भी इशू आता है, जैसे कि वी विल एलिमिनेट द डिजिटल डिवाइड, जेंडर जो एक्सेसिबिलिटी है डिजिटल, उसको करेंगे अपन। इसमें आपको इसका किसका बोलते हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे इन्होंने एआई के ऊपर बहुत सी चीज़ें करी हैं, टेक्नोलॉजी कैसे करेंगे। इसमें टेररिज्म का बहुत ही बड़ा इशू है इंडिया में। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ स्मॉल टाइप के वेपन्स आ रहे हैं जो पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, उन पे रेगुलेशन के लिए कि भाई हर कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सकता उनको। और इसमें ये भी तो यूनानिमस पास करके, और उसमें रशिया का कंसेंसस नाम होता है, सभी चीज़ों पे कंसेंसस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि भाई कि एक कंट्री या दो कंट्री की चल रही है, जो सभी कंट्री को हाँ होनी चाहिए। तो इस यहाँ पे कंसेंसस हो गया तो मेजर और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ इजीली हो जाता है, बिकॉज दीज आर द कंट्री वो हैव मेजर स्टेक्स देयर, लाइक यूएन में या यूएनएफसीसी में, जहाँ क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन होता है। अगर यहाँ पे क्लाइमेट चेंज पे कुछ करा गया तो वहाँ पे इजीली हो जाएगा। लाइक यहाँ पे फंडिंग पे बातें हुई है कि वी विल, मतलब जो डेवलप्ड नेशन है वो फंडिंग करेगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ये जो क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी है, अडेप्टेशन टेक्नोलॉजीज में वो करेंगे, तो वो अल्टीमेटली वहाँ कल्मिनेट हो जाती है। तो G20 है इनफॉर्मल ग्रुप, लेकिन इट क्रिएट सम सेंस ऑफ कंसेंसस, और ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि यहाँ जो हो गया वो फाइनल हो जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए दिस इज द, मतलब प्रेजेंटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी डिस्कस होते हैं, जिसको चाइना और रशिया अपोज कर रहे थे कि यू शुड नॉट डिस्कस यूक्रेन वॉर। जबकि पास्ट में आप देखो सीरिया में जो वॉर चल रहा था, उस पर भी इस कॉन्फ्रेंस, इस समिट के थ्रू बहुत सी चीज़ें हुई हैं। नहीं, ये जो एक चीज बोल रहे हैं ना कि इसमें इंडिया की जीत ये मानी जा रही है कि बिना रशिया का नाम लिए डिक्लेरेशन पास हुआ, ये क्या बात हुई? मतलब इसमें आपने जो रशियन और यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वॉर है कॉन्फ्लिक्ट, तो उसमें रशिया को ये इशू था कि मतलब यू शुड नॉट राइट ये रशियन अग्रेशन ऑन यूक्रेन। मतलब ये अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का यही प्रोग्रेस है कि अपन ने वो नेगोशिएट कर लिया, वो चैनलाइज कर दिया कि वो अपन ने दोनों लाइन, जैसे इसमें क्या बाइफरकेट हो रहा था, दो ब्लॉक थे, G7 ब्लॉक जो आपको पता है डेवलप्ड कंट्रीज का है, और रशिया और चाइना ब्लॉक, वो दोनों अपोज कर रहे थे इन चीज़ों की। मतलब उनको पुट इन करना था ये एक पैराग्राफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे, लेकिन रशिया और चाइना इस पे हाँ नहीं कर रहे थे कि वी विल नॉट अलाउ दिस। तो ये इंडिया की एक तरह से डिप्लोमेटिक फेलियर हो जाता अगर जॉइंट मतलब स्टेटमेंट नहीं आ पाता। लेकिन इंडिया ने लैंग्वेज ऐसी फ्रेम करी जिसमें दोनों पार्टी खुश हो गई। लाइक इंडिया पुट इन ए लाइन की दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर एंड एनी एग्रेशन ऑन एनी टेरिटरी ऑफ सॉवरेन कंट्री इज नॉट अलाउड। तो ये वेस्ट की मतलब यूक्रेन पे आ गया। और ऐसे ही रशिया का नाम लिए बिना, मतलब रशिया भी बोल सकता है कि, क्योंकि रशिया नैरेटिव है ना कि इट्स अग्रेशन ऑफ नेटो ऑन रशिया। तो ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज अपने, मतलब दिस शोज कि इंडिया, क्योंकि इनिशियली पहले इंडिया को बोला जाता था कि इंडिया एडमेंट होता है, इंडिया नेगोशिएट करना नहीं जानता। नाउ दिस शोज कि इंडिया बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे भी इजीली नेगोशिएट कर सकता है। ये मतलब बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मतलब ये बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है कि वी कैन नेविगेट इन दीज ट्यूमुलेटस टाइम आल्सो। और ये इसका क्या मुद्दा है, ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या इक्वेटर के हिसाब से है क्या? जो इक्वेटर के साउथ में है दैट इज ग्लोबल साउथ, और जो इक्वेटर के नॉर्थ में है दैट इज ग्लोबल नॉर्थ। ये इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन इस तरह से चलती है कि कुछ और? बिकॉज रिसेंटली दे वर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल साउथ इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू ग्लोबल नॉर्थ इन G20। ये सब क्या है? देखो ये सारी टर्म अगर आप देखें तो है तो जो पॉलिटिकल टर्म्स हैं, बट ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ ये फर्स्ट टाइम आया था 1980s व्हेन फॉर्मल जर्मन चांसलर, इफ आई कैन रिलाई ऑन माय मेमोरी, विल ब्रेंट, फॉर्मल जर्मन चांसलर हैज गिवन दिस टर्म। सो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट कि इक्वेटर के जो ऊपर हैं वो ग्लोबल नॉर्थ है वो साउथ है, इट्स बेस्ड ऑन पर कैपिटा GDP।
Like India has $2200 per capita. Like, so basically what they have decided, around 15,000, the country that have more than 15,000 per capita, they will be considered as global north. ओह, तो मतलब ये चाइना भी फिर तो, क्योंकि 13,000 उसका है। हाँ, तो चाइना इज पार्ट ऑफ ग्लोबल South. साउथ। सो अगर अपन देखें तो, लेकिन एक यूनिक सी चीज है कि जो ग्लोबल नॉर्थ है वो मोस्टली नदर्न हेमिस्फीयर में है, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हाँ। एंड ऑल द ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज आर इन नदर्न हेमिस्फीयर। पर मैं देख रहा था अभी टॉप 10 इकोनॉमीज देखो अगर जीडीपी के हिसाब से, तो उसमें पर कैपिटा के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इंडिया सबसे नीचे है, उसके एक ऊपर है ब्राजील, और उसके एक ऊपर है चाइना। ये तीनों जो जीडीपी के अकॉर्डिंग, पर कैपिटा का नहीं, जीडीपी के अकॉर्डिंग टॉप 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में आती हैं। इंडिया 5th नंबर पर है, 10th नंबर पे ब्राजील है, सेकंड पे चाइना है। बट पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो ये लोग बाकियों से काफी ज्यादा नीचे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर इन द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ। तो इसमें भी यही होता है, बिकॉज ये टर्म की नीड जब पड़ी, जब मतलब इन 70s दे टर्म कॉल्ड न्यू इंपीरियलिज्म, that came up because lots of जो डेवलप कंट्रीज थी वो रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करती थी इन कंट्रीज से, ग्लोबल साउथ कंट्रीज से, और उनको रिप्रोसेस करके फिर वापस उन्हीं में सेल करती थी। तो इट्स अगेन काइंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। हाँ, जैसे मैंने सुना है कि ये जापान ने भी करा अपने साथ, जैसे खूब सारा आयरन ओर खरीद के ले जाते थे। अब वो इतना सा देश है, वहाँ ले जाके वो समुंदर में उसको डंप करते थे, उसके बाद फिर उसको निकाल के स्टील बना के 70 पैसे टन पे ले जाते थे, और 70,000 रुपए टन पे अपन को स्टील बेचते थे। बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट इज न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म मतलब फिजिकली कोई देश दूसरे देश पे नहीं जाएगा। दे आर टेकिंग द रिसोर्सेज बट दे आर नॉट एस्टेब्लिश इंडस्ट्री इन द नेशन इटसेल्फ। चाइना अगर यहीं प्रोसेस कर ले स्टील तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको भी वो मतलब थोड़ा सस्ता पड़ेगा, लेकिन अपने भी तो वो होगा ना, भला होगा। वो चीजें नहीं कर रहे ना वो लोग, बिकॉज वही वो 70 पैसा का 70,000 रुपए अपन को दे रहे हैं। तो ये अनदर फॉर्म ऑफ विद द कंसेंसस कि हम तो आपकी मर्जी से लेके जा रहे हैं, तो लीगली है पूरा, और कॉन्सेंसस के साथ है। तो ये मतलब ये इशू जो हुआ, इसी को इंडिया ने रिप्रेजेंट किया है G20 में। बिकॉज अब राइट नाउ आफ्टर कोविड पेंडेमिक, बिकॉज ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक आपको पता है वो इक्वली स्ट्रक हुआ है हर कंट्री को, बट लेकिन सब कंट्री की फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज सबकी डिफरेंट है। लाइक किसी के पास मतलब अच्छी इकोनॉमी है तो वो अच्छी तरह हैंडल कर लेगा, दे कैन बियर 1 or 2 क्वार्टर नेगेटिव ग्रोथ। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो तो मतलब उनके पे डेट वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो वो डेट राइज हो गया, वो पे नहीं कर पाए क्योंकि ग्रोथ ही नहीं हो पाई, तो वो पे कैसे करेंगे? तो वो डेट राइज हो गया। सेकंड, जैसे ही कोविड पेंडेमिक से निकले यूक्रेन वॉर हो गया, तो यूक्रेन वॉर से क्या हुआ कि फूड सिक्योरिटी पे मतलब थ्रेट आया, और उसके रिलेटेड एनर्जी सिक्योरिटी पे, क्योंकि ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गए। तो अब ये इंक्रीज होने की वजह से वो डेवलपिंग कंट्रीज मोस्टली डिपेंडेंट किस पे होती हैं? एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट्स पे होती हैं। लाइक उनकी एनर्जी वो मोस्टली ऑयल इंपोर्ट करती हैं, लाइक इंडिया करती है। तो वो महंगे हो गए, तो उनके पास जो रिजर्व थे, डॉलर रिजर्व, वो कम हो गए। और उधर यूएस में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया, तो उनकी जो करेंसी है वो डेप्रिकेट हो गई। तो अल्टीमेटली वो तो मतलब चारों ओर घिर गए ना, मतलब उसी सिचुएशन में ट्रैप हो गए। तो इंडिया ने ये बोला कि वी शुड रीस्ट्रक्चर देयर डेट, हमें उनको रिलीफ देना चाहिए डेट का, और इन मतलब 1 or 2 years का मोरिटोरियम वी कैन मतलब से कि भाई 2 साल आपको रिलैक्स कर देंगे। उन चीज़ों को अपने कंसिडर, जैसे इथोपिया, जाम्बिया, आई थिंक उनको उनका डेट अपने रिस्ट्रक्चर किया अभी इसी G20 में। तो लेकिन उसमें फिर चाइना का इशू आता है। चाइना इसी पे मतलब बोल रहा है कि वी विल, है ना, क्योंकि कंट्रीज तो देती हैं सारा मतलब डेट, तो चाइना इज सेइंग कि वी विल नेगोशिएट देम इंडिविजुअली। चाइना को मतलब अपनी EMI चाहिए होती है। चाइना अब ग्लोबल साउथ में इंडिया कैसे आया, उसका भी यही तो रीजन है, क्योंकि चाइना रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में जनरली कौन आता है? मतलब अफ्रीका मोस्टली। अब आप एग्जांपल लो कोंगो में टंगस्टन मिलता है, और टंगस्टन अपने रिन्यूएबल एनर्जी या अपना ये जितने भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उसके बिना नहीं बन सकते। कोबाल्ट नहीं हो उसके बिना चल सकता। कैपेसिटर टंगस्टन के बनते हैं, आपको बताइए।
चाइना ने वो 2014 से ये सिस्टम उन्होंने देख लिया कि देयर इज नीड फॉर इट एंड वी हैव टू टैप इन द मिनरल, वो जो कंटिन्यूटी है वो उनकी इंश्योर करें वहाँ पे। तो वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया और वहाँ पे जो भी जितनी माइंस हैं उन पे उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मिनरल्स हुआ। लेकिन कोविड स्टक हुआ तो वो लोग वो डिमांड कर रहे हैं कि मतलब वी कांट पे योर डेट राइट नाउ बिकॉज ऑफ सिचुएशन, मतलब ये वंस इन अ सेंचुरी सिचुएशन थी, बट चाइना ने कंसिडर नहीं किया। तो देन ग्लोबल साउथ रियलाइज और साइमल्टेनियसली इंडिया ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस वैक्सीन सेंड करी, बाकी अपने छोटे मोटे जितने भी डेट थे वो उन्होंने बोले हम वी विल रिकंसिडर इट। तब ग्लोबल साउथ को रियलाइज हुआ कि यस वी नीड टू चेंज अवर स्ट्रेटजी, वी नीड टू सी हु कैन अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन बेटर, बिकॉज चाइना इज ऑलवेज मीन्ड फॉर बिजनेस, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। और वो आप उसका एक बेसिक एग्जांपल है पाकिस्तान। पाकिस्तान में BRI का जो वो इकोनॉमिक कॉरिडोर है चाइना पाकिस्तान CPEC जो बोलते हैं, उसमें भी कितना डेट है। प्रेजेंटली जितने पाकिस्तान की सिचुएशन है वो किस वजह से हो रही है, बिकॉज उन्होंने चाइना के पास से इतना डेट ले लिया कि अब वो उनको रीपे करने के लिए फिर से लोन लेना पड़ रहा है। और उसी वजह से उनके जो वेस्ट एशियन कंट्री हैं, जैसे सऊदी, UAE, जो उनके परमानेंट बैंकर थे, या जैसे अपने RBI होता है ना रिसोर्ट टू लास्ट लेंडर, वो थे। अब उन्होंने देखा कि ये फाइनेंशियल वाइबल नहीं है, तो मतलब कैसे चलेगा। और पाकिस्तान की जो प्रेजेंट अपन पॉलिसी देखें राइट नाउ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है। आप अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे पाकिस्तान में ना, अभी TTP आ रहा है, तारीख तालिबान पाकिस्तान, जो मतलब ये खैबर पख्तूनख्वा रीजन पे अटैक कर रहा है। उनके आर्मी के कुछ सोल्जर्स में भी इसमें भी डेथ हुई है। और आज 15 डेज बैक आप देखोगे तो बलूचिस्तान में जो अटैक हुआ चाइनीज ऑफिशियल्स पे, वहाँ पे भी जो चाइनीज ऑफिशियल पे अटैक किया गया, इसी प्रोजेक्ट को टारगेट करा गया मोस्टली। तो चाइना पाकिस्तान इंटरनली पूरा वीक हो चुका है, बट स्टिल इट इज नॉट कंसिडरिंग कि वी नीड इंडियाज कनेक्टिविटी, इंडियाज हेल्प टू सस्टेन। सही बात है। और इसका बेसिक एग्जांपल क्या है कि वर्ल्ड हैज मूव ऑन, कि कल आपने ये देखा होगा कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप का जो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट है, वो उसका बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है कि वी हैव मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली एलिमिनेट द वीटो ऑफ पाकिस्तान टू कनेक्ट अवरसेल्फ थ्रू ओवरलैंड टू द मिडिल ईस्ट। क्योंकि अपन ने 2010 से लेके 15 तक अपने ट्राई किया कि अपन ईरान से पाइपलाइन लाएं थ्रू पाकिस्तान, वो तापी वाला तो नहीं वो करने दिया उन्होंने। ठीक है, अपन तजाकिस्तान से लाने की ट्राई करा, तो वो ओवरलैंड एक्सेस के लिए अपन को मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस अपन को सबसे ज्यादा यही तो, क्योंकि अपने हिस्टोरिकल लिंक्स थे इस सेंट्रल एशिया से, और पाकिस्तान जैसे मतलब पार्टीशन हुआ इंडिया का तो वो ये ट्रबल क्रिएट करने लग गया। तो अपने लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही हुआ ना कि अपने जिस चीप उस पे प्राइस पे अपन ले सकते थे वो अपन को महंगा पड़ रहा है, क्योंकि और ओवरलैंड एक्सेस अपन की उन्होंने कट कर दी। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये उसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस यही है कि वी मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली एलिमिनेट द पाकिस्तान वीटो, कि आप हमारे बिना ना मिडिल ईस्ट या सेंट्रल एशिया से कनेक्ट नहीं हो सकते। ये जो अभी चल रहा है जो हाँ इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप में, तो ये कैसे रहेगा? यहाँ इंडिया से सी के थ्रू रहेगा वहां तक और उसके बाद रेल रोड्स रहेंगे? तो इसका अभी जितना आया है मतलब आप पेपर्स में, क्योंकि अभी इसका पूरा प्रोजेक्ट आउटलाइन नहीं आया है, बेसिक आउटलाइन ये है कि इंडिया से दुबई पोर्ट तक जाएगा थोड़ी शिपिंग, और दुबई पोर्ट से वो UAE, सऊदी, इजराइल होते हुए वो वहाँ इजराइल पोर्ट से रेल कनेक्टिविटी, जॉर्डन भी मैंने सुना था बीच में, और इस रेल कनेक्टिविटी होगी, फिर वहां से वापस शिप लें। अगर तुर्की इसमें भी आ गया तो फिर इस्तांबुल से होके फिर से फिर तो यूरोप तो वहीं पर है। हाँ, तो ये बॉर्डर लैंड भी है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि केवल शिपिंग है, इसमें एनर्जी वाला कॉरिडोर भी है। लाइक अपन पाइपलाइन भी बनाएंगे इसमें। और वो कहाँ से जाएगी? वो समुद्र से जाएगी? हाँ, अंडर सी। और इसमें पाइपलाइन के साथ अपन डेटा केबल भी, फाइबर केबल्स भी आएंगे, डेटा कनेक्टिविटी। ये जो पाइपलाइन रहेगी ये गैस की रहेगी? गैस की, हाँ। जनरली हाइड्रोजन गैस जो अपन इजराइल से लेके आएंगे। और घर में उसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? व्हीकल्स में लगता है? व्हीकल्स में भी जो अभी चल रहा है इसका प्रोसेस हाइड्रोजन, वो भी सारे स्टेट्स अपने इधर शायद अभी कवर अप नहीं हुए हैं। हाँ, गैस की वजह से। और अभी क्या देखो, और इसीलिए तो जो अपन देखे ग्लोबल बायोफ्यूल जो इनिशिएटिव इंडिया ने लॉन्च किया है,
G20 पे, वो क्यों किया करा गया? क्योंकि जब तक वो ना आए, जब तक अपन एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल देखें जो रिन्यूएबल हो और जो इजीली एक्सेसिबल हो। उसमें क्या होता है, बायोफ्यूल आप किससे लेते हो? जनरली बायोमास से लेते हो। बायोमास किसका हो सकता है? प्लांट्स का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है। इनफैक्ट आप इंडस्ट्रीज होती है उनमें जो बायो वेस्ट होते हैं उसको अपन यूज ले लें। जैसे इंडिया की पॉलिसी है कि बाय 2025 वी विल ब्लेंड द पेट्रोल विद 20% ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो इसकी आपको कंटिन्यूस सप्लाई भी चाहिए ना, तो इसके लिए ये ग्लोबल बायोफ्यूल इनिशिएटिव है। और इसमें मेजोरिटी कितने 19 कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव, बट इट शोज आवर इंटेंशन कि वी आर वेरी सीरियस विद द कॉन्सेप्ट, विद द इशू कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। हम इसमें पैसिव रिसेप्टर नहीं है, वी आर द कंट्रीब्यूटर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कि हम, आप ऐसे नहीं बोले हमें बताओ क्या करना है, हम बताएंगे आपका सोल्यूशन क्या है। जैसे इंडियन सोलर अलायंस इंडिया ने किया था, सोलर अलायंस 2015 में फ्रांस के साथ स्टार्ट किया था, वो भी चल रहा है। 121 कंट्रियां आई थी उसमें। हाँ, इनफैक्ट इंडिया ने एक जो इलेक्ट्रिसिटी कॉरिडोर भी प्रपोज किया था, जो मिडिल ईस्ट से लेके पूरा साउथ ईस्ट एशिया तक जाएगा। कि आपकी एनर्जी जो आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मर थे वो सबकी एक होगी। तो वो अभी वही पाकिस्तान, कुछ लोग हैं जैसे ईरान है, ईरान जो जिसकी वेस्ट से लड़ाई चल रही है, थोड़ा सा इशू चल रहा है न्यूक्लियर पे, तो वो चीज़ें सोल्व होंगी तो मतलब इट्स वेरी इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। मतलब आपकी एनर्जी, आपका जो ट्रेड है, आपकी कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब लिंक हो जाएंगे। अच्छा यार, एक चीज जैसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव था चाइना का। बेल्ट रोड इनिशिएटिव में ये देखा गया कि उनके जो पोर्ट्स हैं वो तो पर घंटे के हिसाब से भी देखो तो वो बहुत ज्यादा कमा लेते हैं, बट उनके जो रेल रोड्स हैं जो इन्होंने ऊपर बनाए थे पाकिस्तान को कनेक्ट करते हुए, और वो उतने तो वो चल ही नहीं रहे। मतलब उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको ये चीज समझ आई कि हमारे पोर्ट्स आर फंक्शनिंग फार बेटर एंड दे आर फार मोर प्रॉफिटेबल देन द रेल रोड। और अब वो धरा का धरा रह गया। तो उनका जो BRI है चाइना का उससे अगर कंपेयर करें, ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी बोलते हैं इसको, और ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट, तो इन दोनों में प्रॉफिटेबल कौन सा है, या फिर कौन सा ऐसा है जो ज्यादा कंट्रीज को इन्वॉल्व करता है, ज्यादा इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट करता है, वाइबल है? उसका देखो, आपको ये देखना पड़ेगा कि सब प्रोजेक्ट का पर्पस क्या होता है। BRI का पर्पस क्या, इकोनॉमिक था या जियोपॉलिटिकल था? ये सबसे बड़ा। अगर आप CPEC देखोगे तो CPEC में क्या पाकिस्तान और चाइना में इतना ट्रेड है कि वो इस प्रोजेक्ट को वायबल बना देंगे? इतना वो आपस में ट्रेड कर लेते हैं? नहीं हो पाएगा इतना। तभी वो अफगानिस्तान को कभी इनवाइट करते हैं, कभी तुर्की को इनवाइट करते हैं, उनके लिए वायबल नहीं हो पा रहा है वो चीजें। अब जो कोई प्रोजेक्ट के लिए दो अपन को चीजें देखनी पड़ती है, वो दो एक ही हेड में आती है, सस्टेनेबिलिटी। चाहे वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हो या इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी हो। जैसे चाइना ने इथियोपिया में डैम बनाया, उसकी इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो नाइल रिवर पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जो आप बोल रहे हो कि इसमें सभी कंट्री इक्वल पार्टिसिपेट करेंगी तो इकोनॉमिक वाइबिलिटी तो ऑटोमेटिक आएगी, ईच कंट्री विल कंट्रीब्यूट इक्वली। जो अपन रेल रोड बनाएंगे तो वी आर नॉट द वन हु विल फाइनेंस दिस कॉरिडोर, सभी कंट्री इक्वली कंट्रीब्यूट, तो सभी के स्टेक्स होंगे, तो सभी इक्वली वो परफॉर्म करेंगे। और इसमें देखा जाएगा कि कितना ट्रेड अब हो रहा है। अब आप ट्रेड देखोगे तो अगर यूक्रेन वॉर के बाद जो EU का जो या यूरोप का जो ट्रेड है, एनर्जी ट्रेड है, वो शिफ्ट हुआ है इस पे मिडिल ईस्ट पे, तो यहाँ पे तो एनर्जी ट्रेड कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही इंडिया का जो ट्रेड है वो इंक्रीज हो रहा है। इंडिया FTA साइन कर रहा है EU से या UK से साइन कर रहा है, तो इस वे में तो ये ट्रेड तो इंक्रीज होगा। इसी का तो इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक, क्योंकि EU की जो 55% जो ट्रेड है वो इंडो पैसिफिक से होके जाती है। तो EU को अपन स्टेक होल्डर बनाना चाहते हैं इस रीजन में। तो इफ यू हैव स्टेक्स ना, तो यू विल परफॉर्म गुड। आप पैसिव रिसेप्टर नहीं होंगे ना। अच्छा, ये इक्वेशन क्या है कि देखो अमेरिका भी इंडो पैसिफिक रीजन पे ध्यान दे रहा है, यूरोप भी इंडो पैसिफिक रीजन पे ध्यान दे रहा है, इनका बहुत बड़ा ट्रेड इस रीजन से होते हुए जाता है, बट ट्रेड होता चाइना से। पूरा इंडो पैसिफिक करा हुआ है टू काउंटर चाइना। हाँ, बट एट द सेम टाइम इतना बड़ा जो इनका ट्रेड है, मेजर चंक ऑफ दैट वो हो रहा है चाइना से। तो ये इक्वेशन कैसे बनी हुई है? देखो, चाइना को इनिशियली मतलब आफ्टर 2001 से जब जिसको WTO मेंबर बनाया था US ने, तो दे थॉट कि एज चाइना विल ग्रो इकोनॉमी
इकोनॉमिकली, तो उनमें पॉलिटिकल रिफॉर्म आएंगे, हाँ दे विल बिकम डेमोक्रेटिक इन सम फॉर्म। लेकिन चाइना ने जैसे जी जिनपिंग आए 2013 में, वो उनकी होप खत्म कर दी, क्योंकि एक टाइम पे आप देखो 2010 में आई थिंक बराक ओबामा, देन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ही प्रपोजेस G2 अलायंस, चाइना एंड यूएस अलायंस, कि वी विल टेकल एवरीथिंग। उनको इतना ट्रस्ट था। इनफैक्ट आपको पता BRI में G7 कंट्रीज, इटली भी इसका पार्ट था BRI का, जो अभी कल ही उन्होंने एग्जिट किया है इटली ने। तो ये वो लोगों में इतनी होप थी कि चाइना विल चेंज और चाइना इज बेनिफिटिंग अस, लेकिन जब उनको ये रियलाइज हुआ कि चाइना इज नॉट ओनली हार्मिंग इकोनॉमिकली बट दे आर क्रिएटिंग काउंटर नरेटिव। तो अब काउंटर नरेटिव किस फॉर्म में कर रहे हैं वो, उनके जो जैसे आपने टर्म पढ़े होगी, कैप्चर पावर एलिट्स, उनके यूनिवर्सिटी में वो इन्फ्लिक्ट करके उनकी पॉलिटिकल पार्टी में, अभी ऑस्ट्रेलिया उस चीज से अभी निकल रहा है, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी वो इन्फिल्ट्रेट कर गए, ठीक है, क्योंकि वो नैरेटिव बना रहे हैं चाइना इज गुड, चाइना इज गुड। लेकिन जब उनके जैसे डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक जितने भी अपन इक्विपमेंट जो हुआवी जो इंसिडेंट हुआ था कि वो स्नूपिंग कर रहे हैं या वो सारा डेटा ब्रीच कर रहे हैं या वो ये अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अडहेयर नहीं कर रहे, इन सब चीज़ों को देखा और फिर थ्रेट देखा कि चाइना इज बेनिफिटिंग यूनिलैटरली, मतलब यूरोप को कोई हेल्प नहीं कर रहा है इन एनी सेंस। तो मतलब यूरोप का ट्रेड डेफिनेटली डिपेंड ऑन चाइना, बट दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट इट। ऐसा यूएस है, यूएस का मतलब लार्जेस्ट ट्रेड किससे होता है? चाइना से। चाइना इसका स्ट्रेटेजिक वो है, एनिमी है इस टाइम प्रेजेंटली, नंबर 1 एनिमी आप मान सकते हो, जो अपन लेमन टर्म्स में बोलो तो ये, जबकि ना इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, बहुत ज्यादा। इसलिए ये लोग डायरेक्टली नहीं बोल रहे कि वी विल डीकपल, वो वर्ड लेके आए डी रिस्किंग, कि हम रिस्क जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे मतलब जो फ्रेंडली कंट्री है उनमें इन्वेस्ट करेंगे, बाकी वी विल कीप ऑन ट्रेडिंग विद चाइना। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना, सही बात, क्योंकि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों एक साथ ही चलते हैं, आपको बताइए। ऐसा नहीं है कि वी विल डू, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान कितना ट्रेड कर लेते हैं जब आप स्ट्रेटेजिक एनिमी हो, तो बट मतलब एवरीथिंग विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू। वो साइकिल ही चलती रहती है कि इकोनॉमी की बात बाद में होगी, पहले बॉर्डर का इशू सॉल्व करो। बिल्कुल, आपने देखा नहीं कोविड में जैसे चाइना ने सब कुछ प्रोहिबिट कर दिया था, मतलब वो एक्सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज उसका जब इंटरेस्ट स्टेक हुआ तो देख लिया कि सस्टेनेबल नहीं है ये चीज़ें, कि अपन को तभी एक रेजिलियंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव आया था, इसका इंडिया ही पार्ट है। तो उसमें क्या होता है कि वी विल पुट आवर इन्वेस्टमेंट इन फ्रेंडली कंट्रीज, जहाँ पे ये ना हो कि कुछ सिचुएशन आई और अपने वो वेपनाइज हो जाए, क्योंकि सप्लाई चेन जो अपना है उसको भी वेपनाइज कर लिया था चाइना ने। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया को जो इनके जो मेजर मिनरल है, सबसे ज़्यादा मिनरल्स चाइना ही बाई करता है, लेकिन फिर भी कोविड के टाइम जैसे ऑस्ट्रेलिया ने इस पे मतलब क्वेश्चन रेज करे इसकी पॉलिसीज पे, कोविड पॉलिसीज पे, तो उन पे बैन लगा दिया उन्होंने ये उनको पब्लिकली क्रिटिसाइज किया है ऑस्ट्रेलिया के। तो इट्स मीन कि वो सप्लाई चेन को भी वेपनाइज कर सकते हैं, इतना इसमें कोई बड़ा इशू नहीं। इसीलिए चाइना जो है वो मेजर थ्रेट हो चुका है इन सब का प्रेजेंटली, और उन सब का इसलिए क्योंकि क्या होता है, इन सब का काउंटर कौन कर सकता है? इंडिया इज एक्टिव पार्टनर ऑफ दिस, बिकॉज हम पोजीशन ऐसे हैं कि उनके बिल्कुल बॉर्डर पे हैं। उन सब चाहे यूएसए हो चाहे यूरोप हो, वो तो मतलब ज्योग्राफिकली दे आर वेरी डिस्टेंट, बट वी आर द वन हु हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी एंड विल टू काउंटर द चाइनाज नैरेटिव। वो इसलिए इंडिया पे इतने स्टेक्स हैं, और इंडिया को ये स्टेक्स, ये इन चीज़ों पे बहुत ही कैलकुलेटिवली और जा भी रहा है बहुत अच्छा। मतलब अगर आपने डिप्लोमेसी देखो लास्ट 5 to 10 ईयर्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेटेजिकली वो अपने जो रिलेशन है उनको मैनेज कर रहे हैं। इनफैक्ट यूक्रेन वॉर के टाइम पे जो अपनी डिप्लोमेसी है वो अक्रॉस द पार्टी एक्सेप्टेंस है। अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आपको पता है कितनी एक्रोमोनियस हो गई है, वो वाली बात है नहीं, लेकिन ये अब पहले फॉरेन पॉलिसी जो थी वो डोमेस्टिकली इतनी डिस्कस नहीं होती थी, और उस पर एक समवॉट ऊपर का एक कंसेंसस होता था कि हाँ ठीक है उसमें अपन कर लेंगे, एक्सेप्ट 1 और 2 2008 में अपना न्यूक्लियर जो एग्रीमेंट हुआ था यूएस से, जिसपे लेफ्ट ने अपना अपोज किया है, अपना सपोर्ट हटा लिया था, और फिर वो जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आया था। उसके अलावा आई थिंक आपको याद नहीं होगा कि भाई कोई ऐसा डिस्कस हुआ है, मेजर डिस्कस हुआ है। लेकिन मतलब आफ्टर मोदी इट ऑल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ कंटेंशन, जिसमें क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन चाइना पॉलिसी हुआ,
या यूरोप की हुआ, ये सब चीज़ें अब पॉलिटिकली वो हो गया है, मतलब ये अपना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का पार्ट हो गया है। और इसी वजह से आप देखोगे तो इंडिया जो G20 होस्ट कर रहा है वो कैसे होस्ट किया है, मतलब देर आर अराउंड 200 मीटिंग्स इन 60 कंट्रीज अक्रॉस द इंडिया, 60 cities across India. अक्रॉस इंडिया। मतलब आप उन्होंने कश्मीर में भी किया है, अरुणाचल प्रदेश में भी किया है, साउथ में भी, चेन्नई में भी किया है, सब जगह सब जगह किया है। तो इंडिया ने इसको जो अगर आप सारे मुद्दे भी उसमें, टूरिज्म का हो रहा है श्रीनगर में, हाँ ट्रेड का हो रहा है जयपुर में, इसी तरह से तेलंगाना में हो रहा है बायोफ्यूल्स का और एनर्जी का, रिन्यूएबल। वो तो मीटिंग्स होती है, जैसे मीटिंग एजेंडा होता है, जैसे क्योंकि बहुत से ग्रुप हैं G20 में, जैसे G20 में आप ग्रुप का नाम देखोगे तो U20, T20, S20, Y20, ये बहुत से हैं। जैसे इंडिया ने अभी प्रपोज भी किया है अपने वाले में एक वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप, क्योंकि जो विमेन का जो इश्यूज हैं, जैसे मान लो कि सेक्सुअल वायलेंस का हुआ या वेज गैप जो फेस कर रहे हैं, तो इन इश्यूज पे, या डिजिटल डिवाइड जो फेस कर रही हैं वुमेन, इन सब के लिए उन्होंने अभी ब्राज़ील में जो नेक्स्ट ईयर होगा तब से वो वापस वो नया ग्रुप ऐड किया है इंडिया ने कि ये ग्रुप भी होना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट। तो जो अपन ने 60 सिटीज़ में जो ये चीज़ें करी हैं, इसमें होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि अपन वहाँ पे लेके गए और वहाँ पे मीटिंग हुई, अपन वर्ल्ड को शोकेस कर रहे हैं कि देयर इज ए इमेंस टूरिज्म पोटेंशियल इंडिया हैज। पहला तो ये होता है। दूसरा, वी शो द डाइवर्सिटी, और इस डाइवर्सिटी को वी आर मैनेजिंग डेमोक्रेटिकली, एंड वी आर नॉट मैनेजिंग, वी आर सेलिब्रेटिंग दिस। तो ये, और थर्ड थिंग, डोमेस्टिकली अपने क्या इसमें अच्छा होता है कि अपन को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो गया इसके लिए, क्योंकि आपको मीटिंग होती है तो आपको हॉल्स चाहिए, बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर 60 सिटीज़ में आप, इनफैक्ट एक दो केरल के एक विलेज में मीटिंग हुई है, तो सोचो कितना अच्छा आपने मैनेज किया है इन चीज़ों को। वहाँ पे इतने डेलीगेट्स को लेके जाना, स्टे कराना, तो लॉजिस्टिकली काफ़ी बड़ा टास्क है। सही बात। तो इंडिया ने इस, ऐसा नहीं है कि ये जो G20 की जो लीडरशिप मीटिंग है वो दिल्ली में है, बाकी ऑल ओवर मतलब इंडिया में हुआ ये मीटिंग्स। तो इसमें क्या हुआ है कि मतलब आप गांव में पूछोगे सबको पता है G20 कुछ चीज हुई थी या हो रही है, कुछ तो हुआ है, सबको कुछ तो हुआ है, कुछ बड़ा ही एडवर्टाइजमेंट बहुत तगड़ा है, बड़ा ही हुआ है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट भी हुआ है, उन लोगों को कहीं ना कहीं पता लगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी आए थे कुछ दिन पहले, क्योंकि एक साल का प्रोसेस होता है, ये कल्मिनेशन है G20 का। लेकिन इंडिया को कब मिली है लीडरशिप? नवंबर 2022 में, तब से कितनी मीटिंग्स हुई हैं, 200 मीटिंग्स हुई हैं। तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, और इसका कल्मिनेशन अब जो आज हुआ है, कल हुआ है। कुछ अपोजिशन लीडर्स को मैंने बोलते सुना है कि चाइना काफी अंदर बॉर्डर में आके बैठा हुआ है, अक्साई चीन में, दूसरी जगहों पे गालवान में इशू हो रहा है, डोकलाम में इशू हुआ था, ऊपर से ब्रिक्स समिट हुई थी, उस समय भी एक मीटिंग में जो दोनों देश के प्रीमियर्स हैं उनके बीच ये हुआ था कि भाई अब इकोनॉमिक्स पे बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल मुद्दा बाद में। पर इंडिया का स्टांस ये था कि नहीं भाई, आप पहले बॉर्डर इशू सॉल्व करो, उसके बाद हम आप। तो पाकिस्तान के साथ भी अपना ये इशू रहा है हमेशा से, पहले बॉर्डर पे बात करो, बॉर्डर का इशू सॉल्व करो, देन हम इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे। चाइना के साथ भी सेम स्टैंड है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये नज़रिया हल्का सा इंडिया को चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर यूएस को देखो चाइना के साथ, तो उनका ऐसा कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल वो दोनों इकोनॉमी के लिए देर ऑलवेज, हमेशा तत्पर हैं, वो हमेशा बात करते हैं, हमेशा वो ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बाकी चीज़ें साइड बाय साइड सॉल्व होती जाती है। तो ऐसा नहीं सही रहेगा क्या कि अपन ट्रेड पाकिस्तान के साथ भी, चाइना के साथ भी लगातार आगे बढ़ाते जाएं और ये मुद्दे साइड बाय साइड सॉल्व होते जाएं? ये ज़्यादा ठीक रहेगा कि पहले अपना जो इसको राइट स्ट्रेटेजी बोलें या एडमेंट बिहेवियर बोलें कि भाई हम तो पहले पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें इंटरनल पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो इसमें सही तरीका क्या है, इस तरह क्या बोल सकते हैं इसको? इज इट द एडमेंट बिहेवियर ऑफ इंडिया और इट्स द राइट स्ट्रेटेजी? नहीं, देखो पाकिस्तान से जो आप बोल रहे हो, बॉर्डर इशू नहीं है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से इंडिया बोलती है कि ट्रेड, टॉक एंड टेररिज्म कांट गो टुगेदर। तो अपना मेन इशू है सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। तो पाकिस्तान से बॉर्डर इशू मतलब वी आर डूइंग, मतलब बॉर्डर जो टॉक्स हैं वो हो रही हैं, और गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जो हमारा है वो तो है हमारा, वी विल टॉक ऑन गिलगिट बाल्टिस्तान।
लेकिन जो पाकिस्तान है, दे आर एडमेंट कि वी विल डिस्कस कश्मीर फर्स्ट, देन वी विल डू ट्रेड। अच्छा। और हम बोल रहे हैं कि यू शुड स्टॉप टेररिज्म, देन वी कैन टॉक। बिकॉज आप एक तरफ से तो हमें हमारे पे गोली चला रहे हो और फिर बोल रहे हो बात करो, तो कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना। तो पाकिस्तान से इशू अलग से, बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान से अपना बॉर्डर का मतलब इतना नहीं है कि भाई बॉर्डर पहले सेटल करें, वी आर रेडी टू टॉक। लेकिन वो जब टेररिज्म इन्फिल्ट्रेट करेंगे कश्मीर के थ्रू या पंजाब के थ्रू, तो कैसे पॉसिबल है ये चीज़ें? तो पाकिस्तान को कश्मीर में बात क्या करनी है? होल कश्मीर इशू, बाउंड्री इशू, दैट वी वांट होल कश्मीर। अरे ये तो अब मतलब वो पीए को दैट्स व्हाई दे आर 370s क्रिएटिंग द इशू ना। बिकॉज अब क्या होता है, जैसे अपन को पता है कि जो नेशनलिज्म होता है वो दो वे में क्रिएट किया जा सकता है, एक पॉजिटिव नेशनलिज्म और एक नेगेटिव नेशनलिज्म। पॉजिटिव होता है कि आई लव माय नेशन, आई लव माय कंट्री, मुझे बहुत प्यार है, आई विल कंट्रीब्यूट टू माय कंट्री। नेगेटिव होता है कि मैं उससे नफरत करता हूँ, इसलिए मुझे पाकिस्तान अच्छा लगता है। तो उनका नैरेटिव बनाया गया है एंटी इंडिया, और एंटी इंडिया की वजह से पाकिस्तान एग्जिस्ट कर रहा है। जिस दिन कश्मीर प्रॉब्लम सॉल्व होगी, माइट बी देयर इज नो पाकिस्तान, हु नोस। और इनफैक्ट अगर मैं एनालिसिस सही कर पा रहा हूँ तो राइट नाउ जो पाकिस्तान जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सबसे वीक है और अनपेट्रियोटिक है राइट नाउ। क्योंकि मैं जितना देख पा रहा हूँ, माइट बी नाइव, लेकिन मेरे हिसाब से आप देखो तो इंटरनली बहुत मतलब इकोनॉमिकली तो बहुत डाउन है वो लोग, बहुत डाउन है, बिल्कुल डेट में है। डेट है और बिजली नहीं है वहाँ, और उनकी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी पूरी डिस्टर्ब हो रखी है। और उनके बॉर्डर्स आप देखोगे तो बोर्डिंग नेशन, दो मेजर नेशन है, अफगानिस्तान और इंडिया, दोनों से उनके बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं। ठीक है, तो और इनके जो इंटरनल जितने भी पॉलिटिक्स है वो भी बहुत डिस्प्यूटेड है। आर्मी इस टाइम जो आर्मी हमेशा पेट्रियोटिक हुआ करती थी, मेरे हिसाब से इस टाइम आर्मी सेल्फ सर्विंग हो गई है। तो माइट भी इस अमृत काल में अपन 2047 तक पाकिस्तान एग्जिस्ट होते हुए ना देखें, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि बाइफर्केशन हो सकता है, मतलब हु नोस, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा या ये अपना बलूचिस्तान वो अलग हो सकते हैं, सिंध भी अलग हो सकता है, क्योंकि वो इंटरनली कोहेजन नहीं है और अब कैपेबल भी नहीं है वो उसको होल्ड करने में। जस्ट बिकॉज चाइना उनके साथ है या उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, दैट कैन क्रिएट एन इशू। अदरवाइज उनके पास कोई रीजन नहीं है। इनफैक्ट अपन इतने ग्रो कर चुके हैं दैट इफ दे क्रिएट ए नैरेटिव कि वी शुड हेट इंडिया, और वो वहाँ पे एक माइनॉरिटी के साथ ये कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं या उन पे ऑपरेशन कर रहे हैं, वो नैरेटिव अब नहीं बिक रहा है। क्योंकि दे सी इटसेल्फ कि वहाँ पे कितनी ग्रोथ हो चुकी है और अपन बहुत ऊपर हो चुके हैं। तो वहाँ पे अब नैरेटिव आ गया कि इंडिया हैज़ ग्रोथ सब्सटेंशियली, और हम ही हैं जो इन एस्टेब्लिशमेंट के चक्कर में अपन ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। और वहाँ पे मतलब ह्यूज करप्शन इन एवरी सेंस, जिसको मौका मिलता है सब करते हैं करप्शन। और इनफैक्ट उनका वो ये होता है कि कोई भी पॉलिटिकल टर्म कंप्लीट किया, या दुबई जाओ या लंदन जाओ, यहाँ मत रहो। इवन आर्मी चीफ्स रन अवे। हाँ, तो मतलब इट्स मतलब 1990s या टिल मुशर्रफ तो आर्मी पेट्रियोटिक थी। नाउ आई कैन सी मतलब वो पेट्रियोटिक नहीं है, दे सेल्फ सर्विंग। तो कोई बड़ा इशू नहीं है कि इफ दे कैन इंटीग्रेट इन नेक्स्ट 20-25 ईयर्स। तो यार ये न्यूक्लियर स्टेट और चाइना जो आप हाँ एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, चाइना का जो इशू है, तो चाइना का इशू ये है कि वी ट्राइड दिस सिंस 1990s, जो अपने एग्रीमेंट्स करें, बॉर्डर एग्रीमेंट्स, अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी कुछ इंस्टीट्यूशन अपने बनाए थे और हमने किए थे, और वी कंटिन्यू ऑन डूइंग ट्रेड। इनफैक्ट अपना तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड डेफिसिट है वो है ही चाइना से, अराउंड 80 या $100 बिलियन हो गया। हमने ट्राई किया था, हम उस पाथ पे थे, बट स्टिल दे आर डूइंग एग्रेशन ऑन आवर बॉर्डर्स। वही लोग जो थे अग्रेशन, मतलब चाइना ने तो अग्रेशन शो किया था, या अभी भी वही कर रहे हैं, दे आर डूइंग दिस। तो अब मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि दे आर डूइंग दिस फाइटिंग विथ आवर सोल्जर्स और अपन ट्रेड करें? तो पॉसिबल है नहीं। इनफैक्ट ट्रेड भी अपने पॉजिटिव में नहीं है, तो अपन किस बात का ट्रेड करें? तो अपना डेफिसिट चल रहा है, तो इट मीन्स वी आर मतलब इनडायरेक्टली फाइनेंसिंग दिस देयर आर्मी, क्योंकि उसके नेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो फाइनेंशियली वो अपन से ट्रेड करके रिच हो रहा है, तो इनडायरेक्टली वी आर सपोर्टिंग देम। तो मतलब चाइना के लिए मतलब राइट नाउ वी नीड ए वेरी सॉलिड स्ट्रेटजी, और उसके लिए इंडिया इज वर्किंग लाइक वी कांट काउंटर अलोन राइट नाउ। We need alliance. We need effective alliance because China is not only militarily powerful, they are economically powerful. 6 times that of India. GDP उनका तो उनका GDP $19 ट्रिलियन के अराउंड है, अपन अभी $4 ट्रिलियन के आसपास अभी पहुंच रहे हैं। लाइक 2027 में अकॉर्डिंग टू IMF रिपोर्ट वी विल बी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो
अभी तो बहुत बड़ा गैप है जो अपन को फिल करना है। और इनफैक्ट चाइना का एक इनफैक्ट अभी वरी है, डेमोग्राफी जो उनका पॉपुलेशन है वो एजिंग हो रही है। तो क्या होता है कि कोई भी कंट्री जब उसके डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, मतलब उसके मेजोरिटी ऑफ पीपल लाइक 70 या 65% जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन होता है, उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। तो जब वो सबका एक पर्पज होता है, जब अपन जवान होते हैं तो इतना अपन रिच हो जाए तो बुढ़ापे में अपना ठीक ठाक काम चल जाए। तो चाइना ने बहुत तेज ग्रोथ करी, लेकिन अभी भी वो बहुत जल्दी मतलब बुढ़ापे की तरफ चल दिया। तो अब चाइना को अपन देखते हैं तो उसकी ग्रोथ तो बहुत फिनोमिनल है, लेकिन अभी भी वो इतना श्योर नहीं है कि वो अपने मतलब जो एजिंग पॉपुलेशन उसको फीड कर पाएगा क्या। तो अपन को वो प्रोसेस भी देखना है कि अपन डेमोग्राफिक डिविडेंड अपने पास भी 15-20 साल का विंडो है, तो अपन को भी कंसिस्टेंटली अराउंड 8 से 10% जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रेट लाना क्लिक करनी पड़ेगी। ये मतलब बहुत बड़ा टाइट वर्क है जो अपन करना पड़ेगा। इसमें कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास, डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, डोमेस्टिकली, हर तरीके से। तो पाकिस्तान की वापस बात करें, ये न्यूक्लियर स्टेट है, डिस्टेबल वो हो रहा है, हो सकता है कि डिसइंटीग्रेट हो जाए आने वाले समय में। तो ऐसे समय में जब उनके पास न्यूक्लियर वीपन्स हैं और वहाँ पे आतंकवाद बहुत बहुत ज़्यादा है, आतंकवादी, आर्मी भी पेट्रियाटिक नहीं है एक तरह से, तो आपको नहीं लगता इंडिया की सिक्योरिटी को पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होने से बहुत बड़ा खतरा है? अभी अपन वी कैन मैनेज, मतलब इफ वी सी, चलो न्यूक्लियर इज ए थ्रेट वी कैन से, लेकिन वी हैव डेल्ट इन बांग्लादेश इशू, बांग्लादेश वॉर। हमने वो उनका जो क्राइसिस है वो अपने हैंडल किया था। इशू ये है कि वो न्यूक्लियर का जो है वो कंट्रोल किसके पास है, सबसे बड़ा इशू ये है। और क्या वो न्यूक्लियर का जो उनके पास न्यूक्लियर वेपन है उसको वो कितना रिस्ट्रेन करेंगे या किस फॉर्म में उनके पास रहेगा, वो भी मैटर कर रहा है। बिकॉज अभी वो इतना इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस स्टेट नहीं रहा है, बिकॉज दे बिकम ए वेसल टू चाइना राइट नाउ। और ये शो हो रहा है। इनफैक्ट इफ दे आर वाइज इनफ दे कैन कॉन्टैक्ट टू इंडिया और यूएसए दैट दे शुड बी पार्ट ऑफ दिस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, दे शुड बी पार्ट, और उनके लिए प्रॉफिटेबल है ये। अदरवाइज दे विल बिकम वेसल स्टेट ऑफ चाइना लाइक नॉर्थ कोरिया। तो उसका वो मतलब प्रॉब्लम ये है कि जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, दे आई थिंक दे देमसेल्व्स आर डेमोक्रेटिक, और उनको इतने दिन तक अब दे विल नॉट टॉलरेट, दे आर वेरी इम्पैशंट राइट नाउ। तो मेरे हिसाब से ये इशू सभी को डील करना पड़ेगा। G20 समिट इंडिया में होने से व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू शोकेस टू द वर्ल्ड, क्योंकि पाकिस्तान में तो भाई बहुत ज़्यादा ये बात अब फैल रही है। मैं भी कुछ न्यूज़ चैनल्स उनके देख रहा था, कुछ न्यूज़ सुन रहा था कि भाई इंडिया तो ग्रो कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान आए, मोदी जी से गले मिल के गए, बाइडन आए, बहुत अच्छा ट्रेड पैक्ट और सब कुछ हो रहा है। ये दोनों कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी देखा कल जो इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी उसमें मोदी जी बैठे हुए हैं राइट साइड पे, मोहम्मद बिन सलमान लेफ्ट साइड पे, जो बाइडन, दो इतने बड़े जो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों। इतने बड़े लीडर इंडिया के साथ बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो उनको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यार इंडिया तो बहुत आगे बढ़ रहा है, हम तो रह गए हैं। और अब वो जनता में आक्रोश आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ। तो पाकिस्तान का तो समझ आ रहा है, बट अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग चाइना, व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू शोकेस थ्रू दिस G20 समिट? तो पाकिस्तान का एक ये भी इशू, पाकिस्तान में जब न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था 2007 में इंडिया में, तो बुश को उन्होंने बहुत परसुएड किया था कि शुड विजिट पाकिस्तान ऑल्सो ऑन द वे, कि आप इंडिया आए हो तो हमें भी विजिट करें। तो वहाँ पे वो क्रिकेट खेल के चले गए नेट्स में 3-4 बॉल। तो उस टाइम बहुत हुआ था कि वहाँ तो आप डील कर रहे हो, यहाँ क्रिकेट खेल रहे हो। अब वो MBS को भी कर रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान को, कि एक अब जाते समय हमारे पास आ जाओ, क्योंकि वो लास्ट 6 मंथ से उनको परसुएड कर रहे हैं कि यहाँ पे $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दो पाकिस्तान में। तो वो देख रहे हैं कि हम तो 6 महीने से लॉबिंग कर रहे हैं और यहाँ बात नहीं हुई, अचानक एग्रीमेंट ही हो गया। तो अब वो किस स्टेज पे आ गए हैं इस टाइम। उनको ये सोचना पड़ेगा ना पाकिस्तान को कि आपको लॉबिंग करनी पड़ रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। इनफैक्ट दे आर लिटरली सेलिंग देयर कंपनीज। मतलब ये बोल रहा जा रहा है, जैसे आप वहाँ की इकोनॉमिक न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वहाँ पे कमेंटेटर बोल रहे हैं वी आर इकोनॉमिकली स्लेव नाउ, बिकॉज हमने UAE को बेच दिया सारे इकोनॉमिक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी
उनकी जितनी भी, क्योंकि उनके पास वो IMF के रिफॉर्म्स हैं, उनको करना पड़ेगा लिबरलाइज, तो वो UAE इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब थ्रू बाइंग देयर कंपनीज। तो भी उनको सऊदी MBS को लॉबिंग करनी पड़ रही है कि आप आइए, एक बार आते समय आ जाइए। तो मतलब उनको देखना चाहिए कि मतलब 17-18 सालों में उनका स्टेटस क्या हो गया है। क्योंकि जब उनके पास मौका था तो दे वर रेलिशिंग कि हमारे पास US से आता है, हम खुश होते हैं इस पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर में। और मतलब उन्होंने अगर वो स्ट्रेटेजिकली यूज लिया होता तो दे कुड हैव बिल्ड देयर इकोनॉमी बेटर। लेकिन उन्होंने इंडिविजुअल गेन्स देखे, पैसे जो आए वो कंट्री में नहीं लगाए, वो इंडिविजुअल प्रॉफिट में लगा दिए। तो अल्टीमेटली आपको यही होगा ना कि जिनका इंटरेस्ट परमानेंट इंटरेस्ट होता नहीं है ना एक जगह, ठीक है। जैसे वो बोलते हैं डिप्लोमेसी में कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो चेंज होते रहेंगे ना। इस इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट अब आया है, पहले तो नहीं था। पहले इंडिया को एशिया पैसिफिक इंडिया ने खूब लॉबिंग करी, इंडिया को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। अब इंडिया पिवटल है, इसका सेंट्रल पार्ट है इंडिया। तो जैसे जैसे आप अपनी वैल्यूज बनाओगे, आप दिखाओगे कि मेरे में कितना पोटेंशियल है, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा ज्योग्राफिकली एडवांटेज मिला कि ज्योग्राफी इसकी ऐसी है इसलिए इसको इंपॉर्टेंस मिली है। लेकिन ज्योग्राफी की एक लिमिट होती है ना, तो उसी को ओवरकम कर रही है इंडिया थ्रू दिस कॉरिडोर जो अपन डिस्कस किया, इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप। जो आप बोल रहे हो कि चाइना को क्या शो करना चाह रही हैं, तो देखो क्या होता है, चाइना का एब्सेंस और रशिया का एब्सेंस मतलब ये बड़ा इशू है, ये अपन डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत डिबेट हुआ कि हाउ विल, मतलब एक डिप्लोमेसी में बोलता है इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर द मेनू। मतलब आप टेबल पे नहीं हो तो आप डिस्कस होगे कि क्यों नहीं हो, है ना। लेकिन आप देखो तो कितनी पीसफुली, इनफैक्ट कितने एग्रीमेंट्स हुए विदाउट चाइना एंड रशिया। और सबसे बड़ा इशू क्या था कि देयर विल नॉट बी ए जॉइंट कम्युनिके, जो जॉइंट स्टेटमेंट नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। लेकिन इंडिया ने वो भी कर दिया, यूनानिमस। हाँ यूनानिमस कंसेंसस के थ्रू कर दिया। तो स्किप करके क्या, किसको क्या प्रॉफिट हुआ वो देखना है। इनफैक्ट चाइना ने स्किप किया तो इट्स क्लियरली शोज कि मतलब वेयर वन स्टैंड, कि ये नहीं है कि दे आर सेइंग कि वी विल सपोर्ट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस इज एशिया सेंचुरी, इंडिया एंड चाइना विल ग्रो टुगेदर। लेकिन उनके मतलब लास्ट सैटरडे उनके, अगर आप एम्बेसडर का जो स्टेटमेंट देखोगे नेपाल में, चाइना एम्बेसडर इन नेपाल, उन्होंने बोला कि नेपाल इज मेकिंग मिस्टेक और दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय इंडिया। वो क्लियरली स्टेटमेंट है। तो मतलब अब तो डायरेक्ट मतलब फाइट होगी ना, अब तो पहले वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में थी, अब तो वो दे आर क्लियरली कमिंग ओपन। और अगर आप उनका एम्बेसडर बोल रहे थे, ऐसे तो है नहीं, वो उनके उसके खुद के पर्सनल थॉट है, वो कहीं ना कहीं ऊपर से आए हैं। और दैट टू आफ्टर ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स में पहले ये था कि देयर विल बी सम डिसएंगेजमेंट एट द बॉर्डर, लेकिन नहीं हो पाया अगेन। तो नहीं हो पाया तो हाउ कम जी जिनपिंग कैन कम हेयर एंड फेस द इंडियन मीडिया, क्योंकि वो तो पूछेंगे कि भाई आप बॉर्डर पे खड़े हो, मतलब व्हाट यू आर टॉकिंग हेयर, पहले वो तो सॉल्व